ماں باپ پر بڑھ کے یہاں شفقت دی جاتی ہے اور ماں باپ سے بڑھ کے یہاں احساس اور احترام کیا جاتا ہے. پر ہم احترام لینے کے لیے نہیں آئے, ہم فقیر بن کے آئے ہیں. جو فقیر ہے وہی تاج سجا کے جاتا ہے, جو عہدہ اور مقام لے کے آتا ہے میرا اللہ کہتا ہے جا خالی کر کے تجھے بھیج دیا. ہم فقیروں کو سنبھالتے ہیں, یقین سے کہہ رہا ہوں. آپ نماز کو, اور ایک عمل بتاتا ہوں جو نماز کے دوران نہیں چھوڑنا, میں بتاتا رہتا ہوں. جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھے, حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ 5 بول جو پڑھے گا کبھی گھٹنوں کا مرض, کمر کا مرض, پٹھوں کا مرض, گردن کا کھچاؤ, جسم کی کمزوری, لولا لنگڑا پن, کبھی اپاہج, بسترے بنجے اور بندے کا محتاج, اللہ اس کو نہیں بنائے گا, انشاءاللہ نہیں بنائے گا. میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے مجھے شمار لوگ کہا کہ ہم نے گولیاں بھی چھوڑ دی ہیں, دوائیں بھی چھوڑ دی ہیں, اور ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے. اس لفظ کا اہتمام, اس وظیفے کا اہتمام کیجئے گا. رکوع آپ کو تسبیح خانے میں رکوع کا موقع زیادہ ملے گا, نفل کی وجہ سے, نماز کی وجہ سے, تراویح کی وجہ سے اور مختلف معمولات کی وجہ سے رکوع کا موقع زیادہ ملے گا. یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں. آئیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر. حمدن کثیرا طیبا 3 دفعہ دہرائیں. سبحان اللہ. یہ چیز میں کہہ رہا ہوں اللہ اور ہاں اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا 13 فرشتے دوڑتے ہیں جب یہ بندہ پڑھتا ہے. کتنے فرشتے؟ 13 فرشتے دوڑتے ہیں اور اس کا ثواب لکھتے ہیں, اور ہر فرشتہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ لکھوں, میں اس سے زیادہ لکھوں, میں اس سے زیادہ لکھوں. اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی, لوگ رش کریں گے کوئی نبی ہے, کوئی پیغمبر ہے, کوئی پہنچی سرکار ہے. میں نہیں, آقا کملی والے کا وہ ادنا سا امتی ہے جو اپنی رکوع سے اٹھتے ہوئے پڑھتا تھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی, صحت بھی مل گئی, وزن بھی بڑھ گیا, اور اللہ کی توحید, اللہ کی عظمت کے ترانے بھی سبحان اللہ زبانوں پہ جاری ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں رکوع کی طرف, قیام کی طرف, نہیں سجدے کی طرف. فرمایا جو سجدے کے 2 سجدوں کے درمیان میں اٹھتے ہوئے پڑھے گا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی, اوہو اس میں جو ملتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی, بس سیکنڈ لگتا ہے. فرمایا جتنے بڑے پہاڑ لے کے آیا, کہتا ہے جا معاف, مغفر لی ورحمنی, کہتا ہے تو نے بہت ظلم کیا اپنی جانوں پہ, معاف بھی کیا, رحم بھی کیا. وعافنی, جا تیری زندگی میں عافیت کے, خیر کے, سکون کے, خوشیوں کے, برکتوں کے, راحتوں کے, بیٹے کے, دولت کے, عزت کے دروازے کھول دیے. یہ چھوٹی سی دعا 2 سجدوں کے درمیان اللہ نے موقع دیا ہے, اللہ نے موقع دیا ہے, اللہ نے موقع دیا ہے. اور پھر ایک اور موقع ملے گا آپ کو آخری عشرے میں, یہ موتی ہم چنتے رہیں گے. ایک اور موقع ملے گا نماز کے لیے جب صفیں درست ہو رہی ہوں, بڑا قیمتی موقع ہے. اور میں 2 موقع ایسے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی دعاؤں میں کوئی شک کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ایک اس وقت جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں, جوان تیری آنکھوں میں نیند ہے, عشق و مستی کے ساتھ ساتھ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کا فدا اس وقت کے جس نے دی جوانی کو. ارے لوگوں دیکھو یہ کیا کر رہا ہے کہ کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے. اب میں وہ شعر شروع ہو جائیں گے. اب تیری آنکھوں میں خمار ہے, سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ, آنکھوں سمجھ کے آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. کیا لفظ ہے, بات بولیں, کیا کہہ رہا تھا؟ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز کی قبولیت, اور جو یقین نہ کرے رب ناراض ہوتا ہے. ایک جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں, اب ایک جب کہا جائے صفیں درست کریں نماز کے لیے, تکبیر ہوئی, یہ چند لمحے قبولیت کے ہیں. مانگو ٹوٹ کے مانگو, مانگو ٹوٹ کے مانگو, ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں, دل کے اندر تکبیر کے جواب دیتے ہوئے. اور فرمایا جب مکبر کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, فرمایا وہ لمحہ مہر کا ہوتا ہے, سٹیمپ کا ہوتا ہے. اب جو منوانا ہے اس پہ مہریں لگوا لو. دولت منوانی ہے, رزق منوانا ہے, عزت منوانی ہے, تسبیح منوانی ہے, لقمے منوانے ہیں, سجدے منوانے ہیں, راحت منوانی ہے, عافیت منوانی ہے, آنے والی بلائیں ٹلوانی ہے, جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتت الاعداء منوانی ہے. جو منوا لو وہ لمحے, تھوڑا سا لمحہ
कितना मुबारक लम्हा है आपको। ये कौन बताता है? मैं नहीं कहता, कोई नहीं बताता, पर ये रिवाज खत्म हो गया है। एतकाफ वाले, एतकाफ वाले, एतकाफ वाले। मैं हजरत की बैत से पहले 84 में बैत हुआ हजरत से, 84 में हजरत की बैत से पहले मैं एक मस्जिद में एतकाफ बैठा, मुझे याद है। उस दिन भी आपने बेटों से कह रहा था, बेटो ये तस्बीह खाने का एतकाफ देखता हूं, तो मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह ने बिठवाया था। सुबह होती, फजर की नमाज पढ़ते और फजर की नमाज के बाद एक साहब थोड़ा सा कुरान का तर्जमा बयान करते, और सारा दिन ना कोई वारिस ना कोई बताने वाला कि एतकाफ में आने का मकसद क्या है। और मेरी इशा होती और तरावियों के बाद कुरान का खुलासा, 20 मिनट के बाद फिर फारिग ही फारिग। दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे। यहां तो वारिस हैं आपके, आप खुशकिस्मत हैं। यहां तो कदम कदम पे संभालने वाले। दोपहर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, असर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, जोहर से पहले दस्तरखान रूहानी बिछेगा। यहां लेने वाले, यहां संभालने वाले, यहां दर्द रखने वाले, यहां गम करने वाले। अल्लाह मगफिरली, 2 सजदों के दरमियान, वरहमनी वआफिनी। इसके कमालात सुन लिए। अब एक और चीज सुन लें, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता। मुझे आज जिंदगी के साल गुजर गए हैं, जिसने भी वजू की दुआ पढ़ी है, बड़ा मकान भी बड़ा है, मिला है, कर्जे भी उतरे हैं, विलायत का ताज भी मिला है। हाँ, अल्लाह वक्फिर ली ज़म्बी ववस्सी अली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। छोटी सी को फरमाया, जो वजू के हाथ धोते हुए पढ़ ले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या याद रह गया? बिस्मिल्लाह। जो पढ़ेगा, जब तक वुजू रहेगा, फरिश्ते इसके दाएं बाएं ऐसे घेरा डाल के नेकियां लिखते इसके नाम अमाल भर देंगे। और जो बंदा वुजू के दौरान ये दुआ दिल ही दिल में पढ़ता रहेगा, अगर लैट्रीन में वुजू बेसन है दिल में, वरना वुजू खाने जुबान में पढ़ना, जुबान में है, ऊंचा नहीं पढ़ना। ये अल्लाह मगफिर ली ज़म्बी ववस्सी अली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। नहीं है याद बेकरार हो जाओ, नहीं है याद बेचैन हो जाओ, नहीं है याद किसी के पीछे पड़ जाओ, तेरी मेहरबानी मुझे याद करा दे। बड़ा घर, वसी रिज़्क़, विलायत के ताज, रूहानियत का बेताज बादशाह, रूहानियत का शहनशाह, अल्लाह इसको बना देगा जो ये दुआ पढ़ता है। कितने बेशुमार ने कहा हमारे घर नहीं थे, घर दिया। कितने बेशुमार ने कहा कर्जे उतर गए। कितने बेशुमार ने कहा रूहानियत और अल्लाह का फैज और करम मिला। हमने तो पल पल में। और एक चीज और है, वुजू के 3 घूंट जो बंदा पिएगा, रोजे के साथ मुंह में डाल के निकाल देना, मशक पूरी करना। हाँ, अमल नहीं छोड़ना। वुजू के 3 घूंट, गुस्से का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, मोहरों जोड़ों का इलाज, कमर दर्द का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज। मेरे कमली वाले ने फरमाया, हदीस की रिवायात मौजूद हैं, मेरी कोई बात बगैर सनद के नहीं होती, हर चीज का हवाला मौजूद है और मुस्तनद सही हवाला मौजूद है। वुजू के 3 घूंट, आखिरी अशरा है कर ले मश्क, आखिरी अशरा है ले लें भर लें झोलियां, आखिरी अशरा है अल्लाह से मनवा लें। इस नमाज पे मेहनत कर लें, इस तस्बीह खाने के क़याम पे मेहनत कर लें, और रोजा रख लें। रोजा आखिरी अशरे में रोजा रख लें, जुबान का रोजा, मोबाइल का रोजा। बाहर निकलना ओ बिल्कुल नहीं, छत बड़ी है जी चाहे वहां माशाअल्लाह। आखिरी अशरा, इस दिल को मनाए, ऐ दिल मान जा, सारी उम्र कब्र की कोठड़ी में रहना पड़ेगा, सारी उम्र कब्र की कोठड़ी में रहना पड़ेगा। तू मान जा, अगर नहीं मानता तो फिर तेरी मर्जी है, तू मान जा। तो इस नमाज पे मेहनत करनी है, नमाज के क़याम पे मेहनत करनी है, नमाज के रुकू पे मेहनत करनी है, नमाज के सजदों में मेहनत करनी है। अल्लाह अब तक ये समझा कि नमाज से जन्नत मिलेगी, 100% मिलेगी। जन्नत से पहले भी जन्नत बनेगी दुनिया, जन्नत से पहले भी दुनिया जन्नत बनेगी, और दुनिया खैर बनेगी, और दुनिया राहत बनेगी, और दुनिया रहमत बनेगी, और दुनिया बरकत बनेगी, और मेरे काम बनेंगे, और मेरी मुश्किलें टलेंगी, और मेरे मसाइल हल होंगे। इस नमाज की वजह से, इन तरावियों के सजदों की वजह से, इस 2 नफिल हाजत की वजह से, इस इशराक चाश की वजह से, इन सुन्नतों की वजह से, इन सजदों रुकू की वजह से मेरे काम बनेंगे। अब तक के पिछलों के काम बने हैं, मेरे क्यों नहीं बन सके? मुझे मांगना नहीं आया, मुझे मनवाना नहीं आया, मुझे लेना नहीं आया। आज तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे ये गम दे दिया। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे सलीका दे दिया। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना।
तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने गम दिया है, तूने जिंदगी में जीना मरना सिखाया है, तूने जिंदगी का सलीका दिया है। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया। बुलाता भी है, मिन्नतें करके खिलाता भी है। हर जगह आखिरी अशरे के लिए फीसें हैं, पैसे हैं, आखिरी अशरे के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। अल्लाह का फजल है। याद रखिएगा, जो आज भी रिस्क आपने अपना मुकद्दर खाया, मेरा नहीं, आपने अपना मुकद्दर खाया है। जो रिस्क आइंदा खाएंगे, ना सदका, ना खैरात, ना ज़कात, ना उशर है। क्यों? आप में बेशुमार मालदार हैं। मालदारों को तो सदका लगता ही नहीं है, मालदार तो खुद सदका देते हैं। इस नमाज पे मेहनत करें, रुकू, सजदे, क़याम पे मेहनत करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, वो हमेशा अपने शहर में इत्तिकाफ नहीं करते थे। कई सालों के बाद किसी ने पूछा, हजरत आप इत्तिकाफ के लिए दूर जाते हैं? फरमाया, जहां मैं देखता हूं दसियों का मजमा ना हो, बीसियों का ना हो, सैकड़ों का मजमा हो, मैं वहां जाता हूं। 10 लोगों का मजमा ना हो, 20 लोगों का मजमा ना हो, जहां सैकड़ों का मजमा हो, मैं वहां जाता हूं और वहां जाके इत्तिकाफ करता हूं और वहां जाके नमाज, तस्बीह, जिक्र और वहां की महफिलों में शामिल होता हूं। पूछा, हजरत क्यों? फरमाया, कोई खिज़र हो, कोई वली हो उस मजमे में, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो। मेरी नजरों में तो वो आम आदमी है, रब करीम की नजरों में वो पहुंचा हुआ है। बस उसकी एक नजर लग गई, या जूठा खा लिया, या उसका बचा हुआ खा लिया, या उसका साया पड़ गया, या उसके करीब से गुजर गया, या उसके पीछे नमाज पढ़ ली, या उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ ली, या दाएं बाएं, बस मैं रंगा गया। हत्ता कि यहां तक फरमाया, वो वुजू करके उठा था, उसकी वुजू की जगह पे मैंने वुजू कर लिया, तो भी मैं रंगा गया। मैं आबाद और शाद हो गया, मेरे काम बन गए, मेरे मसले हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हो गई। मेरे आका ने फरमाया है, मुसलमान मोमिन के बचे जूठे में शिफा है। रोजेदार से बड़ा मोमिन कौन होगा? जो हिजरत करके आए उससे बड़ा मोमिन कौन होगा? रात मैंने एक बात कही, आज सुबह वो दोहराता हूं, गौर से सुनिएगा। फरमाया, जो चाहता है कि औलिया की सोहबत में जाऊं और वलियों की सोहबत में जाऊं, जब किताबों का रिवाज बढ़ जाएगा और सोहबत का रिवाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने सहाबा बने हैं ये कमली वाले की सोहबत की वजह से सहाबा बने, सहाबी जो बने हैं। और सहाबा के बाद जितने बड़े बड़े औलिया आए, 40 साल एक ही वुजू से इशा और फजर पढ़ी, 40 साल रात का कयाम, 40 साल दिन का रोजा रखा। क्या कोई बंदा कायनात का उनको सहाबी कह सकता है? बोलो, कह सकता है? बोलो। इसलिए कि उन्होंने कमली वाली की सोहबत नहीं पाई। आज किताबों को सबको समझा जाता है, ये सोहबत का कुछ नहीं समझा जाता। एक चीज ये है, फरमाया औलिया की सोहबत में जाओ, औलिया की सोहबत में जाओ। कोई खड़ा होकर कहे, ये तस्बीह खाने में बैठे हुए सारे औलिया हैं, आप क्या बात कह रहे हैं? आओ फिर मैं एक चीज बताता हूं, एक मोती देता हूं। फरमाया, जहां 11 आदमी जमा हो जाएं और जिनका मतलूब सिर्फ एक अल्लाह हो। क्या हो? आप किस लिए आए हैं यहाँ? आपका मतलब क्या है? आपका मकसूद क्या है? आपकी मंजिल क्या है? आपकी तलाश क्या है? जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह हो, 11 आदमी अगर जमा हो जाएं, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, खवातीन भी मर्द भी, 11 आदमी अगर जमा हो जाएं और जिनका मतलब अल्लाह हो। अब अगली खुशखबरी सुने और दिल आपके बाग बाग हो जाए। फरमाया, वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली की जगह पे होते हैं। ऐसे है जैसे एक अल्लाह का वली है, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह वली की सोहबत में है। और वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली जितनी किफायत करते हैं और एक अल्लाह की वली जितनी सोहबत देते हैं, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह के वली की सोहबत में है। यहां तो बेशुमार 11 लोग बैठे हुए हैं। 11 लोग जमा हो जाएं जिनका मतलब सिर्फ क्या हो? अल्लाह हो। वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं। बस खत्म। ये चलो, ये सादा लफ्ज याद रख ले, वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं। फरमाए, जा अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठ। और फिर मुझे कई लोगों ने बताया, इस मजमे के वसीले से जब भी हमने गिड़गिड़ा के दुआ की है, मौला कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई आहों और सिसकियों का मारा, कोई तौबा करने वाला और पाक हो जाने वाला, कोई तुझे मनाने वाला, किस जेब में गुर्बत है, तंगदस्ती है, घर जाऊंगा रोटी नहीं, यहाँ रोटी मिल रही, कोई कर्जे, कोई गम, जो इस मजमे के वसीले से दुआ करता है, मुझे बेशुमार वाकयात मिले हैं, रब ने उसकी दुआ कबूल की है, उसके मसले हल किए हैं, उसकी मंजिलें मुरादें उसको मिली है। हमारे एक बुजुर्ग थे अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, 100 साल के करीब उम्र पाई। उन्होंने मेरे परदादा को भी देखा हुआ था, दादा को भी देखा हुआ था, वालिद के साथ भी ताल्लुक गुजरा, और मैंने भी देखा हुआ था। यानी वो फरमाते थे, कहते थे तुम्हारे खानदान की 4 नस्लों के साथ मेरा वक्त गुजरा है, लंबी उम्र पाई। परदादा के हालात सुनाते थे, दादा के हालात सुनाते थे, बैठे हुए थे। अचानक एक बंदा आया, महकमा औकाफ में मुलाजिम था, छोटा सा था। तो उसको महकमा कहता था, कहो कहो कहो,
وہ کوہکاف کی کہانیاں سنی، کوہکاف کی، تو وہ اوقاف کو کوہکاف کہتا تھا. کہنے لگا اللہ صاحب کوہکاف میں میری جو ہے نا تبادلہ ہو گیا ہے، کسی اور محکمے میں بھیج دے دیا ہے. وہاں گلے میں بیٹھتا تھا، 2-4 میری جھولی میں بچا جاتے تھے. ایسے سمجھ گئے نا؟ تو مہربانی کریں. اللہ صاحب کہنے لگا تو 12 دن کے اندر بحال ہو جائے گا اگر تو نے پڑھا. ایک تصویر بتاتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، اتنا بھی نہیں تھا، ساتھ بیٹھا تھا. فرمایا 12 تسبیح صبح گڑ گڑا کے پڑھ اور 12 تسبیح پڑھ یا